Praise the name of the Lord. Hallelujah. Greetings in Jesus' marvelous name. The Lord Jesus of Nazareth, the King of glory, bless you richly. Hallelujah. Lord, we magnify your name this morning. Lord, we invite your glorious presence and we seek your sacred anointing to come upon us this morning, Lord. We pray for fresh filling of your presence into our mortal bodies. Lord, we bless you. We congregate to give you praise, give you honor, give you glory. Hallelujah. Be exalted, Lord, in our praise. Be exalted, King of glory. Be exalted. Be exalted, be exalted, be exalted. Fill us whole with a new song, Lord God. Hallelujah. Fill our mind and our heart with your word in a fresh way. Thank you for the sun rising on the horizon. Thank you for the light bursting. Thank you for the new day that brings us new promise of a new beginning. A fresh day that never existed before, that you just created, O God. Hallelujah. This is the day. Indeed, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Lord, the devil cannot create even a single moment. He can create time and eternity. It is you who create the time, and it is you who create eternity. Hallelujah. For they all consist in you. The time and the realm, even beyond the time, they consist together in you. Such a mighty, awesome, and great God we serve. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, bless you, bless you. We praise you this morning. We magnify your holy name. We magnify your holy name. We lift you up, Jesus of Nazareth. We lift you up, King of glory, King of glory. We lift you up. We lift you up. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless you, bless you, bless you. Let your presence come. Let your anointing come. Let your spirit come. Let your Holy Spirit come in a fresh way. Lord, we pray for the fresh shower. Hallelujah. Fresh shower of your presence this morning, Lord. Fresh shower of your presence. Lord, we pray for the fresh shower of your presence. Hallelujah. Lord, we pray for the fresh shower of your anointing. Fresh shower of your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We bless you, bless you, bless you. We give you praise, Lord. We exalt you. We exalt you, exalt you. You're worthy of all the praise. You're worthy of all the honor and all the glory, Lord God. Hallelujah. Holy and exalted one, seated on the lofty, majestic throne at the right hand of the Father. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. 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 We give you praise. We give you praise. Give you praise. Hallelujah. We give you praise. We bless you, Lord. We bless you, bless you, bless you. Lord, we bless your name. Hallelujah. Bless you, bless you. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name, bless your name. Hallelujah. Bless your name, Lord Jesus. Bless your name, bless your name, bless your name. Hallelujah. Lord, we bless you. Lord, we magnify you. Lord, we exalt you. Lord, we give you praise. Lord, we give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Prince of Peace. Thank you, Sar Shalom. Thank you, Sar Shalom. Thank you, Sar Shalom, Prince of Peace.
Thank you, Sar Shalom. Fill your people with peace this morning. Let every heart be filled with fresh shalom. Sar Shalom, O Prince of Peace. You give us your personal peace. You give us your personal shalom. Not like the worldly, false pseudo shalom, but you give us your personal shalom, Jesus. Lord, thank you. We thank you for the peace that you give us, the peace that passes all human understanding. Lord, the peace that passes beyond human logic and reasoning. That kind of peace you, Lord, grant to our souls, Lord God. हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि अद्भुत प्रभु जी सुकून से तू हमें भरता है, जो खुदावन कई बार हम समझ नहीं सकते, इंसानी दिमाग समझ नहीं पाता। ऐसा सुकून, ऐसी शांति जिससे तू हमें भरता है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ वो शालोम तेरे लोगों के दिल में आज की सुबह, लॉर्ड दिस मॉर्निंग फिल योर पीपल विद दैट सेम शालोम। हालेलुया। तू सर शालोम है, सार शालोम है यीशु मसीह। हालेलुया। फिल द हार्ट्स ऑफ योर पीपल, तेरे लोगों के दिल को भर शालोम से। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं खुदावन, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया। खुदावंद आज के दिन तेरी स्तुति करते हैं खुदावंद। यीशु नासरी, जितने तेरे लोग इस समय ऑनलाइन कनेक्ट हैं, इन सबको तेरे खून में छिपाता हूँ, और जो खुदावंद बाद में तेरे इस वचन को सुनेंगे उन्हें भी तेरे लहू में छिपाता हूँ। हालेलुया। तेरा नाम हमारे बीच में ऊंचा हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जिंदा कलाम, द लॉ ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की व्यवस्था हमें आईना दिखाती है कि हम पापी हैं, और हमें यह सिखाता है परमेश्वर का कलाम कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते। और परमेश्वर का कलाम हमें यह सिखाता है दैट वी मस्ट बी बॉर्न अगेन, हमें नया जन्म पाना है। वी हैव टू बी बॉर्न फ्रॉम अबव। परमेश्वर के आत्मा और परमेश्वर के कलाम के मिलाप से हमें नए सिरे से पैदा होना होगा, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएं। आपको मालूम, फारसीज वर ऑलवेज प्लेइंग विद द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। फरीसी लोग परमेश्वर के कलाम से खेलते थे, परमेश्वर के कलाम को मानते नहीं थे, परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट करते थे, परमेश्वर के कलाम को तोड़ते मरोड़ते थे, परमेश्वर के कलाम पे अपनी स्पिन डालते थे। जैसे गुगली फेंकते हैं, ऐसे गुगली करते थे परमेश्वर के कलाम की। वो कभी सच्चे हृदय से परमेश्वर के कलाम के आगे घुटने टेक के पश्चाताप नहीं करते थे। और हम देखते हैं यीशु मसीह हमेशा व्यवस्था को, लॉ को कैसे इंटरप्रेट करता है, इन द स्पिरिट। यीशु मसीह उन शब्दों में जीवन डालता है जब उन्हें बोलता है। यीशु मसीह उनके अंदर आत्मा फूंक देता है, उन काले ब्लैक लेटर्स को जो पुस्तक पे लिखे हैं। जीसस क्राइस्ट उनके अंदर रूहाक डालता है, वो व्यवस्था को, लॉ को आत्मा में इंटरप्रेट करता है। हालेलुया। जिसे कहा गया द स्पिरिट ऑफ द लॉ। बहुत सारे लोग पुराने नियम को विलेफाई करते हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन का जरा भी ज्ञान नहीं। और कुछ तो इतने मती मूड हैं जो ये कहते हैं कि पुराने नियम की हमें ज़रूरत नहीं। ये कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि अब मुझे अपने घर की जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, उसकी ज़रूरत नहीं है।
या वो वृक्ष बिल्कुल मूर्ख होगा जो वृक्ष ये कहेगा अब जड़ें निकाल दीजिए, जड़ों का कोई काम नहीं, मुझे जड़ें नहीं चाहिए। भाई और बहनों, उस पूरे ट्री को जीवन जड़ों से ही मिल रहा है। तो परमेश्वर के कलाम को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। पहला इतिहास निकालें, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, एक सिर्फ छोटा सा संदेश, उसके बाद हमने प्रार्थना करनी है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स एंड 16th चैप्टर, पहला इतिहास 16 अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल 16th चैप्टर वर्स नंबर 32। सुनिए, सॉरी वर्स नहीं है, वन मोमेंट। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो फर्स्ट क्रॉनिकल 16 चैप्टर में, आर यू ऑल हियरिंग मी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं वर्स नंबर 22। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 16 एंड वर्स नंबर 22। हालेलुया। Saying, touch not mine anointed, and do my prophets no harm. हालेलुया। 20 वचन से पढ़ता हूँ। And when they went from nation to nation and from one kingdom to another people, he suffered no man to do them wrong. Yes, he reproved kings for their sake, saying, touch not my anointed, and do my prophets no harm. हालेलुया। तो बहुत सारे लोग फरीसी लोग इन स्क्रिप्चर को यूज करते थे एज अ फुल प्रूफ डिफेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। वो ये वर्ड्स कोट करते थे, टच नॉट माइन अनॉइंटेड, डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म। They used to use this scripture as a shield against accountability and positive criticism. When the leadership doesn't want positive criticism, when the leadership doesn't want to be held accountable, they use this scripture, touch not the anointed. बहुत से फरीसी इसे इस्तेमाल करते थे, मेरे अभिषिक्त को नहीं छूना, मेरे अभिषिक्त को नहीं छूना। फरीसी जिनका जीवन मक्कारी से भरा था, यीशु मसीह उन्हें कहता है हिपोक्रेट, हुपोक्रूटोस। फरीसी कौन थे? हुपोक्रूटोस। आपको मालूम हुपोक्रूटोस का मतलब क्या होता है? एन एक्टर, थिएटर के अंदर जो लोग रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हुपोक्रूटोस। यीशु मसीह फरीसियों को कहता है यू आर हिपोक्रेट, हुपोक्रूटोस, यू आर सिंपली एक्टर, यू आर फेक। तुम दिखावा करते हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं। तुम दिखावा करते हो कि तुम परमेश्वर के वचन से प्रीति करते हो, क्योंकि तुम फाइलेटरीज बांध के रखते हो अपने माथे पे, डिबिया में कलाम रखते हो, जिट जिट बांधते हो अपने हाथ पे, कलाम बांध के रखते हो, तवीज बनाते हो परमेश्वर के कलाम के, और तुम ऐसी पोशाक पहनते हो जिससे तुम लोगों से अलग दिखाई पड़ो। ऐसे वस्त्र पहनते हो ताकि लोग तुम्हें आसानी से पहचाने कि कितने अभिषिक्त फरीसी हैं, और तुम लोगों में चलते भी ऐसे हो, अलग अंदाज में, अलग ढंग से, अपने आप को लोगों के बीच में मिक्स नहीं करते, ताकि एक तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी बने। और तुम यीशु मसीह कहता है तुम बनावटी काम करते हो, तुम ऐसी जगह पे खड़े हो के हाथ उठा के प्रार्थना करते हो जहाँ पे लोग देखें कि तुम कितने आत्मिक हो।
और तुम्हारे सारे काम बनावटी हैं, दिखावटी हैं, तुम्हारे सभी कामों को यहोवा ने रद्द किया है। लेकिन यदि कोई इन फरीसियों को क्रिटिसाइज करता था पॉजिटिवली, या इनकी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी, इनके जीवन की जिम्मेदारी पे सवाल उठाता था, तो ये लोग इस आयत को इस्तेमाल करते थे। पहला इतिहास 16:22, saying, touch not my anointed and do my prophets no harm. पहला इतिहास 16:22 इसे इस्तेमाल करते थे कि परमेश्वर के अभिषिक्तों को नहीं छूना, परमेश्वर के नबियों का कोई नुकसान नहीं करना, परमेश्वर के अभिषिक्त को छूओगे तो श्राप आ जाएगा, दंड आ जाएगा। फियर फैक्टर, डरा के दबा के लोगों को गुलाम बना के रखते थे। भाई और बहनों, परमेश्वर का कलाम कहता है, इफ द लव इज परफेक्टेड देन देयर इज नो फियर। यदि आपका परमेश्वर के संग प्यार मुकम्मल है तो डर है ही नहीं। तब तक डर है, फियर है, ट्रेमर है, जब तक आपका प्रेम परमेश्वर के संग संपूर्ण नहीं है। तो फरीसियों को यीशु मसीह कंडेम करता है। आपको मालूम 8 बार बोलता है इन्हें, वो अनटू यू, वो अनटू यू। हाय तुम्हारे ऊपर फरीसियों, क्योंकि तुम बनावटी हो, दिखावटी हो, तुम चूना पुती कब्रों की मानिंद हो, बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से गली सड़ी हड्डियां। तुम प्याले को बाहर से धोते हो, बनावटी दिखावटी धर्म और मजहब के काम करते हो, रीति रिवाज परंपराओं के काम करते हो, लेकिन अंदर से धोना अनिवार्य है। हालेलुया। और यीशु मसीह फरीसियों का, सदूकियों का, इन फेकर का, कॉन आर्टिस्ट, दीज गाइज वर कॉन आर्टिस्ट, दे वर चीटिंग, लूटिंग पीपल। ये परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ के पेश करते थे। ये फरीसी भी ये वर्ड यूज करते थे। पहला इतिहास 16:22। आज भी बहुत सारे पास्टर लोगों को डराने के लिए, बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचर्स, टू create fear factor in the hearts of people do use this scripture. अब देखिए, राजा दाऊद एनगदी की गुफा में छिपा हुआ है, और शाऊल जो है इज़राइल का राजा है, वो उसका ससुर भी है। अब आप देखिए, एक ससुर जब जेलसी से, जलन से भर गया, तो वो अपने दामाद को भी मारना चाहता। उसने कई बार मारने की कोशिश भी की है। देखिए, जब शाऊल और दाऊद असल में शाऊल के लिए लड़ने जाता था, और उसके रथ को भी हाँकता था, और योद्धा था, शूरवीर था, क्योंकि वो लड़कपन से यहोवा का खोजी था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो यहोवा के चेहरे की तलाश करता था। वो गडरिया था जो अपनी भेड़ों को लेके एकांत में चला जाता था, महीनों महीने जंगलों में, पहाड़ों में, तराइयों में रहता था, और रात भर यहोवा को खोजता था। भोर को उठ के उसके लिए दस्तार का बाजा बजा के गीत गाता था। रात के पहरों में मैं तुझे ढूंढूंगा हे यहोवा, सुबह उठ के तेरा धन्यवाद करूंगा। वो यहोवा का आराधक था, यहोवा का डरवैया था, यहोवा के चेहरे का खोजी था। यहोवा उससे प्रगाढ़ प्रीति करता था। हिब्रू में दाऊद का मतलब है दूदावाहू, जिसका असली मतलब है दी वन हुम द लॉर्ड लव्स, वो जिससे यहोवा प्रीति करता है। इसका डुअल मीनिंग है, वो जो यहोवा को प्रीति करता है और वो जिससे यहोवा प्रीति करता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जड़ें हैं परमेश्वर की उपस्थिति में पनपी हुई। उसका ससुर उससे जेलस आपको मालूम कब होता है? जब दाऊद जो शूरवीर है और विजयी होकर लड़ाइयों में यरूशलेम लौटता है, तो यरूशलेम की औरतें गीत गाती हैं कि शाऊल ने तो हजार दुश्मनों को मारा, पर दाऊद ने 10,000 दुश्मनों को मारा। तो जब दाऊद के शौर्य की, वीरता की 10 गुना ज़्यादा बड़ाई होने लगी, तो शाऊल के अंदर जेलसी पैदा हुई। हालेलुया। अब दाऊद वास्तव में शूरवीर है, सुन लीजिए, वास्तव में यहोवा उसके संग है,
वास्तव में यहोवा का डरवैया है, वास्तव में यहोवा की विधियों हुक्मों की पालना करने वाला और उसके मार्गों में चलने वाला सच्चा यहोवा का भक्त है। उसके अंदर चरित्र है, दाऊद के अंदर कैरेक्टर है। आज बहुत सारे लोगों का कैरेक्टर अंदर से खाली है। बहुत सारे ऐसे लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जिनका कैरेक्टर नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडरशिप में काम है जो आपको स्टेज पे दिखाने के लिए करने हैं, अंदर से जीवन नहीं है, लेकिन स्टेज पे जाके आपने परफॉर्म करना है। दैट इज सो डेडली, एब्सोल्युटली डेडली। नाउ डेविड इज हाइडिंग इन द केव, he is in the interior part of the cave, and Saul the king also comes there. David cuts off the edge of the garment of the king. If you remember, I taught you about the fringe of the robe of the Yahweh, the fringe of the robe of the Lord God of Israel in Isaiah chapter number 6, and what it really means. The fringe of the robe becomes so large when the kings used to go in the battle. The king that they defeat, they become vassal kings. Suzerain vassal is another kind of covenant, contract covenant. So they will pay tribute to the one who won them. और वो क्या करते थे, उस हारे हुए राजा की पोशाक का टुकड़ा काटते थे और जीते हुए राजा की पोशाक के अंदर उसे स्टिच किया जाता था। सो जिस राजा ने जितने युद्ध जीते होते थे उसकी ट्रेन ऑफ द रोब उतनी बड़ी होती थी। तो यहोवा परमेश्वर दिखाता है अपनी ट्रेन जिससे पूरी हैकल भरी हुई है, इनफैक्ट ब्रह्मांड भरा हुआ है। हालेलुया। तो उसकी रोब को काटता है राजा दाऊद। Saul's robe is a symbol of Saul's authority. David cuts it off. तो उसके सोल्जर उसे बोलते हैं कि your enemy is very much in your hands. Kill your enemy and ascend to the throne. इसको मार दे और राजगद्दी ले ले। लेकिन राजा दाऊद ऐसा विकेड काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि दाऊद के अंदर परमेश्वर के वचन के ट्रू प्रिंसिपल्स जिंदा हैं। परमेश्वर का कलाम उसके हृदय के अंदर जिंदा है। हालेलुया। अब देखिए, लोग इसे यूज करते हैं एज अ फूल प्रूफ शील्ड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। अरे भाई, अगर आपके जीवन में कोई कमी है, घटी है, कोई व्यक्ति आपको पॉइंट आउट करता है, टेक इट पॉजिटिवली, पॉन्डर ओवर योर लाइफ, एंड इफ यू सी व्हाट ही पॉइंटेड आउट वाज करेक्ट, गो एंड थैंक हिम एंड रेक्टिफाई योर लाइफ, रादर देन सेइंग कि अभिषिक्तों को मत छुओ, उसके नबियों को कोई हार्म मत करो। अब देखिए, आप इस समय ये सारी वाक्या को सैमुअल अपनी पुस्तक में लिखता है। सैमुअल शाऊल के सारे पापों के विषय में लिखता है। तो क्या सैमुअल वॉज टचिंग द अनॉइंटेड ऑफ द लॉर्ड? अगर सैमुअल ने ना लिखा होता तो आपको कैसे पता लगता? Saul was not even anointed. He tried to kill David. He was demon possessed or demon oppressed, whatever you want to say. और उसके एंड में अपनी लाइफ के क्या होता है? कितना ट्रेजिक एंड है। He goes to a sorcerer. नेक्रोमेंसी करने के लिए जाता है ताकि सैमुअल की रूह को उठाया जाए। उसके जीवन को यहोवा छोड़ गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हालेलुया। तो परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट करना, परमेश्वर के कलाम को अपनी स्पिन देना, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। डोंट पुट स्पिन ऑन द वर्ड ऑफ गॉड फॉर योर ओन अल्टीरियर मोटिव, टू डिफेंड योर सेल्फ व्हेन यू आर रॉन्ग, or to present your position in a way when your soul says that your argument is wrong, then you twist the word. परमेश्वर के कलाम से मैनिपुलेट करना डेंजरस है। मैंने आपको बताया, इसके ऊपर मैंने कई मैसेजेस दिए, मे बी 20 आवर्स से ज़्यादा की शिक्षा दी
कि जब इस्राएली लोग, जूइश लोग बेबीलोनियन कैप्टिविटी में चले गए तो बाबुल में जाके उन लोगों ने हिब्रू भूल गए और उन्होंने एरमिक, नॉर्दर्न एरमिक सीख ली और फिर उन्होंने परमेश्वर के पूरे कलाम को इंटरप्रेट कर दिया नए सिरे से, उसकी नई इंटरप्रिटेशन दी, अपने ख्यालों से, अपने रब्बियों की, उस्तादों की तालीम के एंगल से परमेश्वर के कलाम को नए सिरे से इंटरप्रेट किया, जिसे हम हगाडा कहते हैं, हिब्रू में कहते हैं हगाडा। पूरे के पूरी ओल्ड टेस्टामेंट की व्यवस्था की, प्रॉफिट एंड नवीम एंड केटुबीम की नई इंटरप्रिटेशन की। फिर उन्होंने ऑरल लॉ को, जो ऑरली ट्रांसमिट किया गया, ये लोग मूसा की व्यवस्था को नहीं मानते थे। ये जो लॉ यहोवा ने मूसा को ऑरली दिया, जो कभी लिखा नहीं गया, वो मूसा को दिया गया, मूसा ने आगे अगली जनरेशन को दिया, अगली जनरेशन ने अगली जनरेशन ऑफ लीडरशिप को दिया, और वो केवल लेवाइट्स के अंदर रहा। कोई और व्यक्ति उसे जान नहीं पाया, उसे कभी लिखा नहीं गया। दी ऑरल लॉ, दे वुड गिव क्रीडेंस टू दी ऑरल लॉ। वो उस परमेश्वर के कलाम को जो मुंह जवानी मूसा को दिया गया, उसको ज़्यादा तरजीह देते थे। जो मूसा ने लिखा कलाम, उसको नहीं देते थे। वो परमेश्वर की व्यवस्था नहीं सिखाते थे, परमेश्वर का सच्चा कलाम नहीं सिखाते थे। वो मनुष्यों के बनाए कानूनों को, विधियों को, नियमों को, मनुष्य के बनाए परंपराएं, रीति रिवाज, उन्हें सिखाते थे। यीशु मसीह ने कहा, पढ़ लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 7 वचन। यीशु मसीह कहते हैं, तुम परमेश्वर के कलाम को तो रद्द करते हो और मनुष्य की सिखाई रीतियों को, रिवाजों को और परंपराओं को सिखाते हो। हाय तुम्हारे ऊपर। आज भी कलीसिया यही काम कर रही है। यहोवा का जो सच्चा कलाम है वो नहीं सिखाएंगे, मनुष्य ने जो स्पिन दी है, उसको अपनी इंटरप्रिटेशन दी है, वो सिखाएंगे। आपको मालूम, बाइबल में 2 फ्रेज हैं। एक तो है डॉक्ट्रिन ऑफ मैन, मनुष्यों की शिक्षा, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। ये दोनों बहुत डेडली हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ मैन इंसान के रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार, इंसान के बनाए कानून, यहोवा के नहीं। समझ रहे हैं आप? और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, बदरुओं की शिक्षा। ये डीमंस हैं, वो बदरुएं, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय वाली, जिन्होंने मनुष्य को पथभ्रष्ट किया, मनुष्य के डीएनए को स्पॉइल किया। वो जब मारे गए जल प्रलय में, वो डीमन बन गए, दुष्ट आत्माएं बने हैं। वो आज भी चर्च के अंदर घुस के झूठी शिक्षा देते हैं। बड़े बड़े फेमस पादरियों को पकड़ते हैं, उनके अंदर से कल्टिक टीचिंग, शैतानी शिक्षा, वो कलीसिया को सिखाते हैं और पथभ्रष्ट करते हैं। तो जैसे ही मनुष्य की शिक्षा डेंजरस है, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस डेंजरस है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मूसा को पढ़ते तो तुम मेरे पास आते, क्योंकि मूसा मेरी ही गवाही देता है। वो मूसा को नहीं पढ़ते थे, मूसा की व्यवस्था नहीं जानते थे। वो ऑरल लॉ, जो मुंह जवानी ट्रांसमिट किया गया, जिसे हम बोलते हैं हलागा, उसे बोलते हैं हलागा। और जो उनके रब्बियों ने उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन दी, उसे बोलते हैं हगाडा। जूइश लोग हलागा और हगाडा को मानते थे। आपको मालूम, उन्होंने टैलमुड लिखा जब वो बेबीलोन में थे। वो सारी शैतानी शिक्षा है टैलमुड में। कुछ हिस्से बहुत ज़बरदस्त हैं उसके, कुछ हिस्से वैसे के वैसे हैं जैसे यहोवा का सच्चा कलाम, लेकिन अधिकांश हिस्सा टैलमुड का ये डार्क टैलमुड है, जिसके अंदर परमेश्वर के कलाम की सारी शिक्षा को खुर्द बखुर्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया यहोवा के कलाम को। और उन्होंने टैलमुड लिखा और उसमें उसके बाद उन्होंने मिशना और गमारा लिखे। तो भाइयों और बहनों, हालेलुया, परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट करना, तोड़ना, मरोड़ना
अपने मकसदों, अपने उद्देश्यों के लिए परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ के पेश करना, या लोगों से पैसा ऐंठना हो, या लोगों को अपनी गुलामी में रखना हो, या लोगों के ऊपर अपनी लीडरशिप की पावर को प्रकट करना हो कि मैं बड़ा अनॉइंटेड हूँ, और उसके लिए कलाम को ट्विस्ट किया जाए, ये यहोवा को पसंद नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब जब यहोवा के कलाम को ट्विस्ट किया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, तब तब प्लेग आती है ज़मीन पे। देख लीजिए आप। और जो जो प्लेग यहोवा ने भेजी हैं, किसी प्लेग का तोड़ इंसान के पास नहीं है। आप HIV वायरस देख लें, उसकी वैक्सीनेशन नहीं निकली, ठीक है। आप क्या कहते हैं, 16, 17, 18 सेंचुरी में जो जो बबूनिक प्लेग्स आई, ब्लैक प्लेग आई, किसी की कोई वैक्सीनेशन नहीं निकली। कैंसर इज़ अ प्लेग, कोई वैक्सीनेशन नहीं निकली। ये दंड है यहोवा का जो पृथ्वी पे आता है। इस दंड से बचने के लिए वैक्सीनेशन नहीं, तौबा की ज़रूरत है। तो जो फॉल्स टीचिंग है वो ये भी सिखाती कि तौबा की ज़रूरत नहीं है, हाइपर ग्रेस थियोलॉजी, कि अगर आप तौबा करते हो तो यहोवा को, परमेश्वर को इंसल्ट करते हो। ये ना केवल गलत शिक्षा है बल्कि शैतानी शिक्षा है। मैंने आपको सिखाया कैसे DNA डेली घूमता है, जो तौबा को दिखाता है। हमारे जीनोम्स डेली रिटर्न करते हैं प्रभु की ओर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन के अंदर जीवन फूंकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 63 वचन में एक्सक्यूज मी, यीशु मसीह कहते हैं जो शब्द मैं तुमसे बोलता हूं वो आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस दिन के लिए। खुदावन, आप प्रभु जी केवल काली स्याही से लिखे गए अक्षरों का ज्ञान नहीं देते हो, आप अनंत जीवन देते हो। प्रभु जी, आपके शब्द जो बोलते हो, आप आत्मा में जिंदा किए शब्द हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, आज की सुबह आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं। प्रभु, हम तेरे सच्चे कलाम के संग जुड़े, तेरे कलाम को तोड़े मरोड़े नहीं, अपने जीवन को एडजस्ट करने के लिए। लोग अपने जीवन को सही साबित करने के लिए परमेश्वर के कलाम को तोड़ते मरोड़ते हैं, बल्कि परमेश्वर तेरा कलाम हमारे जीवन को तोड़े और मरोड़े और कामिल करे। खुदावंद, पाप की गंदगी निकाले। प्रभु जी, झूठा दिखावा, झूठा घमंड, लोगों के आगे बनावटीपन दिखाना, लोगों के दिलों में अपनी आत्मिकता की इमेज बनाने की कोशिश करना, प्रभु ये दिखावे की घटिया बातें, गंदी बातें, खुदावंद तेरे लोगों के जीवन से दूर हो। प्रभु जी, एक सरल और सच्चा जीवन तेरे लिए जिए। प्रभु जी, हम पे दया कीजिए, करुणा कीजिए। प्रभु जी, हालेलुया। तेरे कलाम को स्पिन करने वाले, ट्विस्ट करने वाले नहीं, बल्कि तेरे सच्चे कलाम को पेश करने वाले, पैडलर नहीं, सच्चे तेरे वचनों को पेश करने वाले तेरे सच्चे दासों को खड़ा कर। खुदावंद, आज की सुबह मैं तेरे इन लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ। बहादुर सिंह आकाश और जसवीर सिंह सुरेंद्र को इनके जीवनों पे अपनी करुणा करें खुदावंद, अपनी दया का हाथ इनके जीवन पे बढ़ाएं। डेजी VS के ऊपर अपना हाथ बढ़ाइए, मंजीत मसीह के ऊपर अपना हाथ बढ़ाइए। खुदावंद, मैं आपका लहू कमलजीत गिल पे छिड़कता हूँ, मलकियत गिल उनके घराने पे छिड़कता हूँ, पास्टर चरणजीत पे आपका लहू छिड़कता हूँ। खुदावंद, मीनू सूद के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपना हाथ बढ़ाएं, छुएं और मीनू सूद को चंगा करें, पूरी रीति से चंगा करें अपने लहू की कुदरत के द्वारा। हर रोग कमज़ोरी व्याधि इनके शरीर से चली जाए। गीता को छुएं प्रभु जी, इसके हस्बैंड प्रहलाद को, इसके बच्चों को छुएं। खुदावंद, बरकत दें। यीशु नासरी मंजीत मसीह को बरकत दें, अपने लहू में छिपाएं। खुदावंद यीशु मसीह दानिश को आशीषित करें, अपने लहू में छिपाएं। जसपाल सिंह को छुएं, इनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे छू के चंगा करें। प्रकाश मसीह जी के लिए, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं।
Lord, I pray for Kundan Shah that you touch his life. Lord, in Jesus' name, bless my brother Raman Khan. Bless his wife Reena Khan and his daughters and his mother, his household, Lord Jesus of Nazareth. Bless brother Lalit from Delhi. Let your hand be upon brother Lalit. Bless brother Ratan Prakash and his family, Lord. Let your hand be upon them in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, bless Bishop Sandeep and his family. खुदावंद तेरे इन तमाम लोगों को जो ऑनलाइन है छू खुदावंद. I pray for Shalu Gaba. Bless her. Lord, I pray for all the Kathuria family, that your hand be upon all of them in the name of Jesus. I speak your blessing. Lord, bless Jaspal Singh's boiler work. Bless him, Lord Jesus. खुदावंद मैं अपने आप को भी तेरे चरणों में रखता हूँ. छुएं खुदावंद, सब कमज़ोरी मांदगी दूर करें, अपने लहू में छिपाएं. मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरी माता को, मेरे भाइयों को खुदावंद अपने खून में छिपाइए. Lord, I pray for Vanita Chopra and Hitesh Chopra. Bless them. May your hand be upon them. Your mighty hand be upon them. I pray for brother Amrish Kumar from Jalandhar. Bless him. Bless his family, Lord. Let your hand be upon him. Hallelujah. Bless his friend Ajay Suri and his family, particularly his mother, Lord Jesus of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद तेरे हजूर में प्रार्थनाएं करने, उपवास रखने, प्रभु जी पवित्र आत्मा में चलना, पवित्रताई में चलना, धार्मिकता में चलना, सीधे मार्गों पे चलना, क्रूस उठा के प्रभु जी अपनी वासनाओं को क्रूस पे चढ़ा के पवित्र जीवन जीना तेरे लोगों को सिखाइए. बनावटी, दिखावटी, फोखा, शोखी भरा जीवन, इससे अपने लोगों को बचाइए खुदावंद. हालेलुया. खुदावंद पुष्पा रानी को अपने लहू में छिपाइए. आपका खून पुष्पा रानी पे मैं छिड़कता हूँ. अमरजीत कौर पे आपका लहू छिड़कता हूँ. उसकी बेटी पे, बेटी की बेटियों पे, उनके हस्बैंड पे आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावंद. अपने लोगों को आशीषित करें खुदावंद जी. आपका धन्यवाद. आपकी महिमा हो यीशु जी, आपकी महिमा हो. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. आज का दिन आपके हाथ में देते हैं खुदावंद. आज के दिन हमारा मार्गदर्शन करें. आज के दिन अपने लहू में हमें समेट के रखें खुदावंद. आपकी महिमा हो हमारे जीवन में. प्रभु यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन, आमीन. हालेलुया. आज मैं एक वीडियो टीचिंग करने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा. हालेलुया. खुदावंद आप सबको बरकत दे. सबको जय मसीह की.